السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ شعور بیداری کی کمی کی وجہ سے سائبر جرائم میں اضافہ، انٹرنیٹ کے دور میں بہت بڑا چیلنج۔ سینٹر آف ایکسیلنس فار سیفٹی کا KTR نے کیا افتتاح۔ عثمانیہ یونیورسٹی تلنگانہ تحریک کا مرکز، جہدکاروں کی یادگار بنانے کا کانٹریکٹ آندھرا والوں کو دیا گیا۔ ریونت ریڈی کا بیان۔ زندہ رہنے کے لیے ایک تڑپتا دل بھی چاہیے، ہندوتوا پر کون زیادہ چلے گا؟ اس کے لیے کیجریوال، مودی اور کانگریس میں مقابلہ۔ گجرات میں کامیابی کی امید، بیرسٹر اویسی کی میڈیا سے بات چیت۔ بیرونی طلباء پر مبینہ جنسی حملہ کرنے والا یونیورسٹی آف حیدرآباد کا ہندی پروفیسر معطل، گرفتاری کا طلباء نے کیا مطالبہ۔ اور مشترکہ سروے کے بعد بھی وقف اراضی کا عدم تحفظ، ریاستی وقف بورڈ کی نااہلی کے سبب تادلہ گڈھا کی وسیع موقوفہ اراضی پر قبضہ۔ کمرشل شاپس فار سیل ایٹ ٹوری چوکی شیخ پیٹ مین روڈ۔ شیخ پیٹ کے نئے برج سے پہلے معاون زمزم لبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر، پارکنگ کی سہولیت اور دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم۔ نماز کے لیے مخصوص جگہ۔ آج ہی اپنی شاپ یا آفس بک کرائیں، جس میں ملٹی برانڈ شو رومز، آفیسز، بینکس، ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن پیش کرتے ہیں 3 پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج، مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کہ باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام نورانی لباس، ٹوری چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ شعور بیداری کی کمی کی وجہ سے سائبر کرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ سائبر آباد میں تلنگانہ سینٹر آف ایکسیلنس فار سیفٹی سائبر سیفٹی کے افتتاح کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائبر جرائم سے متعلق شعور بیداری نہ ہونے کی وجہ سے تعلیمی یافتہ اور IT ملازمین بھی دھوکہ کھا رہے ہیں، جو تکلیف دہ بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے تیزی سے تحقیقات اور عوام میں شعور بیداری کی ضرورت ہے۔ مائکروسافٹ IIT حیدرآباد سینٹ ادارے کے تعاون سے پولیس نے یہ سینٹر قائم کیا ہے۔ یہ سینٹر ملک کا پہلا سینٹر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر کام انٹرنیٹ سے ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں سائبر جرائم کی روک تھام ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سائبر جرائم کے متاثرین کے لیے 1930 ٹول فری نمبر رکھا گیا ہے۔ پولیس اپنی طور پر پوری طرح کام کر رہی ہے۔ دیگر کمپنیاں بھی اپنی سماجی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ وزیر موصوف نے کہا ہے کہ خصوصی ویب سائٹ تیار کرتے ہوئے مجرمین کی فہرست جاری رکھی جائے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی، IT محکمے کے چیف سیکرٹری جیش رنجن کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں حاملہ خواتین کو نیوٹریشن کٹ تقسیم کے پروگرام کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کاماریڈی ضلع میں 30 بستر والے CHC ہاسپٹل کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا اور دیگر ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا۔ وزیر صحت نے اس موقع پر کہا ہے کہ ایک ہفتہ 10 دن میں نیوٹریشن کٹ تقسیم پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ تمام حاملہ خواتین کو یہ کٹ دیے جائیں گے۔ زچہ بچہ اموات میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈبل انجن سرکار ہر معاملے میں پیچھے ہے۔ 16 کروڑ ملازمتیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، 16 لاکھ ملازمتیں بھی فراہم کرنے میں یہ حکومت ناکام رہی۔ BJP کی ڈبل انجن والی سرکار نہیں بلکہ ٹربل انجن سرکار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کئی مشکلات کھڑی کر رہی ہیں۔ ریاست میں جاری پروگراموں کو روکے بغیر، عوام کو کوئی مشکلات پیش آئے بغیر ریاستی حکومت اقدامات کر رہی ہے۔
सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक का नाम आते ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी की याद आती है। तेलंगाना जहदकार श्रीकांत चारी की बरसी के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने जहदकारों की तौहीन की। तेलंगाना के लिए जान देने वाले श्रीकांत चारी को ये हुकूमत भूल गई है। इस वक्त श्रीकांत चारी से लेकर अब तक सुनील नायक जैसे कई जहदकारों ने कुर्बानियां दी हैं। कल तक उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मेरे दाखिले पर पाबंदी थी, आज वही तुलबा उनके साथ हैं। गैर तदरीसी अमला ना होने की वजह से यूनिवर्सिटी का बुरा हाल है। इन्होंने कहा कि हसास मसला पैदा होने पर सियासी कायदीन उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हैं। इन्होंने कहा है कि आज प्रोग्राम ने एक बार फिर तेलंगाना तहरीक को जिंदा कर दिया। तेलंगाना में आज मुत्तहिदा आंध्रा हुकूमत से बुरा हाल है। माजी में पुलिस दाखिल होने के लिए खौफ महसूस करती थी, लेकिन आवाज को दबाने के लिए खुलेआम कार्रवाई कर रही है। इन्होंने कहा है कि जहदकारों की यादगार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी आंध्रा वालों को दिया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आपके मसाइल क्या हैं, इनको मंशूर में शामिल किया जाएगा और इस पर अमलावरी की जिम्मेदारी हमारी है। केसीआर को इख्तिदार से हटाने पर ही नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी के दरमियान गली की लड़ाई का ड्रामा चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में बंगाल जैसा तजुर्बा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि दिल्ली लिकर स्कैम के मुकदमे में दीगर मुलजिमीन को दहली तलब करते हुए तहकीकात की गई। कविता के मामले में मंजूरी ली गई। केसीआर पर बदउनवानी के हक़ाइक़ के बारे में जानना है तो कोकापेट की अराजियात, बंगारू कोली और दीगर मुकदमात की तहकीकात होनी चाहिए। माजी में इलेक्शन कमीशन से बंगारू कोली के बारे में नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन अब तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। 6 दिसंबर के अंदर इलेक्शन कमीशन अगर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करने पर दिल्ली अदालत का फैसला कलअदम हो जाएगा। मरकजी हुकूमत की तरफ से मुल्क भर में 9 कोयला कांकनी के हर्राज का बाकायदा तौर पर शुरुआत हो गई। संगारेनी की 4 कानों को हर्राज में शामिल रखा गया है। तमिलनाडु की भी 3 कानें शामिल हैं। मगरबी बंगाल में भी 7 कानों को हर्राज में रखा गया है। वाज़ेह है कि हुक्मरान टीआरएस की तरफ से मुसलसिल संगारेनी को कानगियाने के खिलाफ एहतजाज किया जाता रहा है। Of course, these are lignite blocks. Tamil Nadu 3, Telangana 4, and West Bengal 7 blocks. And in total, as I said, that the total resources is around 67 billion ton, out of which 31 billion ton is of G1, that is proved category, and total peak rated capacity is around 300 million. वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुनक्कौड़ में बीजेपी की शिकस्त के बाद हैदराबाद का दौरा किया था। इस वक्त जलसे आम में वाज़ेह तौर पर कहा था कि संगारेनी कॉलोनीज का खानगियाना नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म के बयान देने के बाद 1 महीने का अरसा भी नहीं गुजरा कि मरकजी हुकूमत ने संगारेनी की 4 कांकनी को खुले तौर पर हर्राज में शामिल कर दिया। HCCL में 51% भागीदारी ये तेलंगाना की राज्य सरकार की है, जबकि भारत सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 49% है। HCCL के निजीकरण से जुड़ा कोई भी फैसला केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर ही नहीं सकती है। 51% उनके पास है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, HCCL के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तेलंगाना संगारेनी कॉलोनीज के ब्लॉक को मरकजी हुकूमत खुले तौर पर हराज कर रही है। इसके खिलाफ मंदामरी, टीबीजी, केएस और टीआरएस पार्टी के कायदीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए नारेबाजी की। तेलंगाना को रोशनी देने वाले संगारेनी कॉलोनीज को मरकजी हुकूमत हर्राज कर रही है। संगारेनी कॉलोनीज के तहफ़्फ़ुज़ और मजदूरों के मफ़ाद के लिए मरकजी हुकूमत इस फैसले को
वापस लें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि गुजरात में हम 13 नशिस्तों पर ही इंतखाब लड़ रहे हैं और उन्हें नशिस्तों पर हमने अपनी तवज्जो मरकूज की है। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उम्मीदवार कामयाब हों। बैरिस्टर अवैसी का कहना था कि जलसों और रोड शो के दौरान मजलिस को जिस तरह का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल मिल रहा है, इससे हमारे उम्मीदवारों की कामयाबी का इम्कान बड़ा है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि जो हुजूम हमारे साथ था वो वोटों में तब्दील होगा। देखिए, आप जानते हैं कि हम तो सिर्फ 13 विधानसभा पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी पर हमने अपनी पार्टी के जिम्मेदारों ने, साबिर भाई ने, जो गुजरात के अध्यक्ष हैं, हम इसी पर तवज्जो किए हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स कामयाब हो, जो एमएलए बने। तो यही हम देख रहे हैं। अब दूसरी जगह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की गुजरात में तूफानी मुहिम जारी है। हफ्ते की शाम गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर अवैसी ने पार्टी उम्मीदवार साबिर काबुलीवाला के हक में मुहिम चलाते हुए रिक़्क़त अंगेज दुआ की। बैरिस्टर अवैसी की दुआ के दौरान सामाईन पर सख्ता तारी था। गुज़िश्ता रोज एक जलसे के दौरान बिल्किस बानो का हवाला देते हुए अश्कबार होने से मुताल्लिक सवाल पर बैरिस्टर अवैसी का कहना था कि बिल्किस बानो के लिए जब इन्होंने दुआ की तो उन्हें अपनी बहन और बेटी याद आई। बिल्किस बानो का ऐसा मसला है जिसे 20 साल के बाद भी इंसाफ नहीं मिला और वो अकेली लड़ रही हैं। अगर बिल्किस बानो की इस हालत पर कोई नहीं रोएगा तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। जिंदा रहने के लिए एक तड़पता हुआ दिल भी चाहिए जो लोगों के दुख दर्द को समझ सके। सदर मजलिस ने बिल्किस बानो और उनके शौहर की जुरातमंदी को सलाम किया। रोते हैं क्या, उसमें इंसान है। जब बिल्किस बानो के लिए हम दुआ किए तो हमको भी अपनी बहन, अपनी बेटी याद आ गई। तो ऐसा इशू है। बिल्किस बानो माने 20 साल के बाद भी एक अकेली महिला, उससे जो जुल्म हुआ, प्रेग्नेंट थी, रेप हुआ, उसकी बेटी की हत्या सामने की गई, उसकी माँ का रेप, हत्या की गई। 20 साल के बाद भी आज वो इंसाफ के लिए लड़ रही है। बैरिस्टर अवैसी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की हिंदुत्व के बारे में कहा है कि आज नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदुत्व पर कौन चलेगा, इसकी लड़ाई हो रही है। दिल्ली के वजीर आला हों या राहुल गांधी, दोनों का मौक़िफ़ एक है। बाबरी मस्जिद के पास शिलान्यास कराने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी। मस्जिद का ताला भी उनकी तरफ से खोला गया था। देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक न्यूज चैनल को उनसे सवाल किया गया हिंदुत्व के बारे में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व को मानता हूं। भाई, तुम क्या भारत के संविधान को नहीं मानते, जिस पर तुमने शपथ लिया, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया? किस बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं? आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? तो पूरी लड़ाई आज देश में यह है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर हम उनसे ज्यादा हैं, चाहे वो दिल्ली का वो मुख्यमंत्री हो या फिर कांग्रेस के जो नेता जो पूरे भारत में पैदल पैदल फिर रहे हैं, या राजद के लोग हों या सपा के लोग हों। वो अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करना चाहते हैं, वो नफरत का मुकाबला नफरत से करना चाहते हैं, वो जहालत का मुकाबला जहालत से करना चाहते हैं। भाई, जहालत का मुकाबला इल्म की शमा रोशन करने से होता है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी को फैलाने से होता है, नफरत का मुकाबला मोहब्बत से होता है, मोहब्बत को आम करने से होता है। तो ये लोग फर्क ही नहीं महसूस कर रहे, इसीलिए तो भाजपा जीतती है, इसीलिए भाजपा जीतती है। नहीं, वो क्यों नहीं इस तरह का बयान देंगे? उन्हीं के पिताजी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बगैर मुस्लिम साइट को बताए, उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और वहां पर शिलान्यास कराना शुरू करा दिया। उस जमाने में जब कोई कंप्यूटर नहीं था, 5 या 10 मिनट की हियरिंग में 65-70 पेजेस का ऑर्डर दे दिया गया और बूटा सिंह जाकर शाम में ठहरकर ताले खुला दिए। बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंशूर में शामिल किए जाने पर बैरिस्टर अवैसी ने कहा है कि हम शुरू से ही मुखालिफ रहे हैं। ये मुल्क की खूबसूरती इसके तनव्वु में है और इसमें हजारों तहजीबें पाई जाती हैं। अगर वो तहजीबें बरकरार रहेंगी तो हिंदुस्तान
बरकरार रहेगा। तो जब जस्टिस चौहान लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, जब उन्होंने सबसे राय दी, हमने लिख कर दिया कि हम यूसीसी के खिलाफ हैं। ये देश की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है। ये देश की खूबसूरती एक कल्चर नहीं हो सकता, इसमें हजारों कल्चर हैं और वो कल्चर प्रॉस्पर करेंगे, वो कल्चर रहेगा तो ही भारत की ताकत है। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं तो गुजरात में कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता बगैर सरकार से परमिशन लिए। क्यों भाई? आप कौन होते हैं मैं धर्म परिवर्तन करना चाह रहा हूं तो आपसे क्यों पूछूं? आप डिस्टर्ब एरियाज एक्ट लगाते हैं, मुसलमानों को परमिशन नहीं मिलता घर खरीदने के लिए। आप मलधारी लोगों को फॉरेस्ट राइट्स नहीं देते, यूसीसी की आप बात करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में क्या अमित शाह जाकर एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, सेक्शन 118 है वहां पर। कौन सा यूसीसी होगा? मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा या कौन सा होगा? क्या महिलाओं को एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा मिलेगा या कहेंगे कि नहीं कन्यादान हो गया बेटी जाओ? अरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो शराब के ऊपर पाबंदी लगाई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि देश में दौलत सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। आज देश की 50% दौलत 8-9 परिवार के पास है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हैं। दिल्ली एमसीडी इंतखाबात और आम आदमी पार्टी के बारे में मुसलमानों के मौक़िफ़ पर बैरिस्टर वीसी ने कहा है कि केजरीवाल वो शख्स है जिसने तबलीगी जमात पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अदालत ने उसे खारिज किया। दिल्ली में फसादात हो रहे थे तो ये शख्स राजघाट पर जाकर बैठ गया। नहीं, वो तो देख रहे हैं ना कि ये वो शख्स है जिसने तबलीगी जमात पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये वो शख्स है जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे तो बजाय राइट्स को रोकने के वो जाकर राजघाट पर आंख और जबान बंद करके बैठ गया। ये वो शख्स है जिसने दिल्ली में डिमोलिशन करवाया और कहा कि वो पूरे बांग्लादेशी रोहिंग्या है। ये वो शख्स है जो करेंसी नोट के ऊपर महात्मा गांधी की फोटो हटाकर किसी और की देवी देवताओं की फोटो चाहता है। ये वो शख्स है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को ये कहता है कि हाँ मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। तो ये सब देख रहे हैं लोग, ये भी देख रहे हैं लोग। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बैनुल अक़वामी यौम माज़ूरीन के मौके पर हुकूमत की जानिब से माज़ूरीन की फलाह व बहबूद और इनको समाज में खड़ा करने मुख्तलिफ इक़दामात का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत माज़ूरीन को दरपेश मुश्किलात को दूर करते हुए इनमें खुद एतमादी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने दावा किया है कि माज़ूरीन की फलाह व बहबूद में रियासत तेलंगाना सारे मुल्क में पहले मुकाम पर है। माज़ूरीन को माहाना 3016 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। डबल बेडरूम मकानात, दलित बंधु स्कीम, मुलाजिमतों में 4% तहफ़्फ़ुज़ात, फलाही स्कीमात में 4% हिस्सा माज़ूरीन को दिया जा रहा है। उन्हें तालीमी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने सीबीआई के रूबरू पेश होने से मशरूत आमदगी जाहिर की है। सीबीआई की जानिब से जुमा को उन्हें एक नोटिस दी गई थी कि वो लिकर स्कैम में वज़ारत दाखिला प्रवीण कुमार रॉय की शिकायत पर पूछताछ के लिए 6 दिसंबर को पेश हों। इस नोटिस का हफ्ते को जवाब देते हुए कविता ने सीबीआई को लिखा कि उनके खिलाफ जो शिकायत सीबीआई को वसूल हुई है इसकी एक नकल उन्हें रवाना की जाए ताकि उन्हें मालूम हो सके कि शिकायत क्या है, ताकि वो इस शिकायत को देखने के बाद सीबीआई की पूछताछ का जवाब दे सके। इन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ दी गई शिकायत के वसूल होने के बाद ही हैदराबाद में पूछताछ के लिए वक्त लिया जा सकता है। हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी ने पहली बार पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला है। टीआरएस अवाम का एतमाद खो चुकी है, अवाम ने कांग्रेस को छोड़ दिया। तेलंगाना में बीजेपी ही इख्तिदार में आने की उम्मीद है। तेलंगाना में जितनी बदउनवानियां हो रही हैं वो कहीं और नहीं हुई। इन्होंने कहा है कि फाजिल बजट वाली रियासत को केसीआर ने मकरूज कर दिया। शशिधर रेड्डी ने कहा है कि 1956 से अलहदा तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले उनके वालिद एम चिन्ना रेड्डी थे और इन्होंने मरकजी हुकूमत से मुकाबला किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने बैरूनी तुलबा पर मुबैना जिनसी हमले में मुलविस हिंदी के प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया। रजिस्ट्रार दिवेश निगम की तरफ से प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया है कि यूनिवर्सिटी इस वाक़े की सख्त मजम्मत करती है और हिंदी के प्रोफेसर रवि रंजन को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है।
प्रेस नोट में यह भी बताया गया है कि गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में रवि रंजन के खिलाफ दफा 354 और 354A के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। प्रोफेसर को मुअत्तल किए जाने के बाद तुलबा का एहतजाज खत्म हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक तालिबा के साथ प्रोफेसर की मुबैना जिनसी हमले को लेकर एहतजाज भड़क उठा। मुतासरा तालिबा का ताल्लुक थाईलैंड से बताया गया है और मुतासरा 23 साला तालिबा ने गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी। तफसीलात के मुताबिक 69 साला प्रोफेसर रवि रंजन पर तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि प्रोफेसर ने उसे अपनी कार में घर ले जाकर शराब पिलाई और उस पर मुबैना हमला किया। मुतासरा तालिबा का कहना था कि जब उसने मज़ाहमत की कोशिश की तो उस पर प्रोफेसर की तरफ से हमला किया गया। ये भी इत्तलात मिल रही हैं कि प्रोफेसर रंजन के खिलाफ माजी में 3 केसेस दर्ज हैं। यूनिवर्सिटी की दूसरी तालिबात का कहना है कि अगर साबिक में रवि रंजन के खिलाफ दर्ज केसेस पर सख्त कार्रवाई होती तो आज ये हालात नहीं होते। जैसे ही इस वाक़े की इत्तला आम हुई, मुख्तलिफ तुलबा तंजीम के कारकुन यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा हो गए और एहतजाज करने लगे। एहतजाजी कारकुन प्रोफेसर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। तुलबा का कहना था कि ऐसे प्रोफेसर को बख्शना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तुलबा के एहतजाज को देखते हुए कैंपस में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था। वक्फ बोर्ड औकाफी इमलाक व जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की का कानूनी तौर पर एक मजाज इदारा है, लेकिन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड अपने कानूनी फ़राइज़ की अंजामदही के बजाय औकाफी जायदादों की तबाही व बर्बादी का एक गैर मजाज इदारा बन रहा है। इसकी मिसाल तारलागड्डा में वाक़े दरगाह शाह कुली बहादुर रहमतुल्लाह अलैह के तहत मौजूदा वसीतर मौकूफ़ा अराज़ी की बर्बादी व नाजायज़ कब्ज़ों से मिलता है। 2018 में इस मौकूफ़ा अराज़ी पर चंद अशरार ने गणेश की मूर्ति बिठाई थी और ये बावर किया गया कि आर्जी पंडाल है, बाद में इसे हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद इस आर्जी पंडाल की जगह एक मुस्तकिल ढांचा खड़ा कर दिया गया, जिस पर मुकामी मुसलमानों ने सख्त एहतजाज किया। इस एहतजाज के बाद 2019 में RDO की क़यादत में महकूम माल, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड की जानिब से मुश्तरका सर्वे किया गया। ये सर्वे होकर भी 2 साल का अर्जा गुजर चुका है। इस सर्वे के मुताबिक इस इलाके की 22,056 मुरब्बा मीटर अराजी मौकूफ़ा करार पाई, लेकिन इस मुश्तरका सर्वे की निशानदही के बावजूद वक्फ बोर्ड की जानिब से एक डिक्लेयर मौकूफ़ा अराजी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। ना तो अलामती बोर्ड लगाए गए और ना ही हिसारबंदी की गई। इस अराजी को यूं ही खुला छोड़ दिया गया। इस अराजी के एक हिस्से पर एक मुकामी शख्स ने एक वसी अराजी पर अपना दावा रखते हुए कब्जा कर लिया। कानूनी हक मालूमात 2005 के तहत जब मुश्तरका सर्वे की रिपोर्ट तलब की गई, इसमें वाज़े तौर पर आसिफ नगर तहसील के तहत इस अराजी को मौकूफ़ा करार दिया गया। इस दरगाह के तहत मस्जिद, आशुरखाना, कब्रिस्तान के अलावा वसी खुली अराजी की निशानदही की गई। ऐसा महसूस हो रहा है कि वक्फ बोर्ड औकाफी इमलाक व जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय उनकी बर्बादी का मौजब बन रहा है। बोर्ड नए CEO के तकर्रुर, दीगर मौज़ूआत में उलझा हुआ है। मौजूदा बोर्ड को औकाफी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की शायद ही कोई फिक्र होगी। हज हाउस की बुलंद व बाला इमारत वक्फ अराजी पर तामीर की गई थी। इस कीमती अराजी को वक्फ करने वाले मरहूम अब्दुल रज़्ज़ाक़ थे। आज हज हाउस में वाक़े मरहूम अब्दुल रज़्ज़ाक़ की कब्र को तो कोई पूछने वाला नहीं। अगर आप वक्फ बोर्ड का जायज़ा लेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ ना तो बैठने का मौसर इंतज़ाम है और ना ही बैतुल क़ला की हालत ठीक है। दरवाजे टूटे हुए हैं, कुर्सियों पर बिल्ली बैठी हुई नज़र आती है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड की तरफ से 39,72,98,135 रुपये मंजूर किए जा चुके हैं ताकि रियासत के तमाम वक्फ इदारों की तज़यीन की जा सके। लेकिन चिराग तले अंधेरा के मस्दाक हज हाउस की भी हालत ऐसी ही है। सदर नशीन की तवज्जो भी शायद दफ्तर की हालत पर नहीं है। हज हाउस में अक़लियती बहबूद के जितने दफातर हैं, वहाँ पर सुदूर नशीन के दफातर की आसाइश पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अवाम की सहूलत के लिए
कोई तवज्जो नहीं दी जाती। बहरहाल वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों का हाल इस शेर की तरह है कि या रब मेरी कमाई को अक्ल हलाल दे, खाने को कौरमा हो, खिलाने को दाल दे। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने पत्थरघट्टी डिवीज़न के मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में अहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। रुकन असम्बली ने सड़कों की तोसी, ड्रेनेज के कामों के अलावा दूसरे कामों से मुताल्लिक भी अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। रुकन असम्बली चारमीनार ने कल्याण लक्ष्मी के तहत 13 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स भी तकसीम किए। इस्तिफादा कुरिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान से इजहार तशक्कुर किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के तहत मंजूरा कल्याण लक्ष्मी के 90 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। रुकन असम्बली ने बताया कि अनकरीब आसिफ नगर, शेखपेट और गोलकुंडा मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए जाएंगे। इस्तिफादा कुरिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर और रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। हजरत सैयद गुलाम हुसैन अहमद अली शाह मिर्ज़ा सरदार बेग रहमतुल्लाह अलैह के 134वें सालाना उर्स के 4 रोज़ा तकारीब का पीर 5 दिसंबर से दरगाह शरीफ वाक़े अहाते मज़ाहिया आगापुरा में आगाज़ होगा। सज्जादा नशीन व मुतवल्ली मौलाना गुलाम मोहम्मद मीर हुसैन अली के मुताबिक मंगल 6 दिसंबर को संदल शरीफ वो महफिल समा होगा। चारशंबा 7 दिसंबर को चिरागा वो महफिल समा और जुमेरात 8 दिसंबर को इख्तितामी तकरीब मुनक्किद होगी। उर्स में मुल्क भर से मुतक़दीन और अरकान हल्का इरादात की कसीर तादाद शरीक होती है। साहिती सरावानी कंपनी के खिलाफ मुतासरीन ने CCS के रूबरू धरना दिया। ग्रुप के चेयरमैन लक्ष्मी नारायणा, डायरेक्टर B सातोक, एक और डायरेक्टर B पार्वती के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी गई। पुलिस ने साहिती इंफ्राटेक वेंचर के मैनेजिंग डायरेक्टर लक्ष्मी नारायणा को गिरफ्तार भी किया। बताया गया है कि इस कंपनी के शहर में तकरीबन 900 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जारी हैं और तकरीबन 2500 अफराद ने फ्लैट्स के लिए रकूमात भी अदा कर दी हैं। पुलिस का कहना था कि ग्राहकों को 1200 ता 1700 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स तवील इमारतों में फ्राहम करने का वायदा किया गया था, लेकिन इसे पूरा नहीं हुआ। इस कंपनी के प्रोजेक्ट के पास HMD और GHMC की भी इजाज़त ना होने की इत्तला मिली है। मुतासरीन का कहना है कि उनसे जो रकम ली गई है वो फौरी वापस की जाए। साउथ जोन पुलिस की तरफ से रैन बाजार डिवीजन के गंगानगर इलाके में जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब कॉटन एंड सर्च अंजाम दिया गया। DCP साउथ जोन साई चैतन्या की क़यादत में अंजाम दिए गए इस कॉटन एंड सर्च की खास बात यह रही कि उस वक्त मीडिया के नुमाइंदों को इस मुहिम से दूर रखा गया और मखसूस पुलिस ओहदेदारों के साथ कॉटन सर्च अंजाम दिया गया। सवाल यह पैदा होता है कि क्या पुलिस के आला ओहदेदारों को मीडिया के नुमाइंदों पर भरोसा नहीं, या फिर पुलिस के इनके मातहत ओहदेदारों पर भरोसा नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि कॉटन एंड सर्च से कबल गैर समाजी अनासिर को इस कार्रवाई की इत्तला मिल जाती है, जिसके बाद गैर समाजी अनासिर या तो फरार हो जाते हैं या फिर पुलिस के ओहदेदारों से मामलादारी कर लेते हैं। शायद उसी को पेश नज़र रखते हुए पुलिस के आला ओहदेदार रैन बाजार के इलाके गंगानगर में ये कार्रवाई अंजाम दी। हफ्ते के दिन मीडिया से बात करते हुए DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने कहा कि कॉटन एंड सर्च के दौरान 200 से ज़्यादा पुलिस मुलाजमीन ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए DCP साउथ जोन ने बताया कि दरकार दस्तावेजात ना होने पर 78 टू व्हीलर्स और 3 ऑटोस को जब्त कर लिया गया। गैर कानूनी 5 सिलेंडर को भी तहवील में लिया गया। 17 मुश्तबा शीटर्स को भी तहवील में ले लिया गया। जुए के अड्डे पर धावा करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
20,000 रुपए की नकद रकम और 9 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। डीसीपी का कहना था कि कब्रिस्तान के अहाते की भी तलाशी ली गई, जहां से 14 अफराद को तहवील में ले लिया गया। इस कोऑर्डिनेटेड सर्च का मकसद गैर समाजी अनासिर को काबू में करना था। सिकंदराबाद गांधीनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े आरपी रोड के पास वाटर फिल्टर की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। मुतासरा दुकान के इंतजामिया का कहना था कि 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की वजह बताई जा रही है। दो फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने भी मुतासरा दुकान का मुआयना किया। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। शहर के बावकार तालीमी इदारे रॉयल डिग्री कॉलेज पंजशा का नवा ग्रेजुएशन डे हफ्ते को मुनक्किद हुआ। कॉलेज की तालिबात ने गैर मामूली मियार को बरकरार रखते हुए इस बार भी शानदार मुजाहिरा किया। कॉलेज का मजमुआ नतीजा 85% रहा। कॉलेज की होनहार तालिबा माहीन सुल्ताना ने बीएससी न्यूट्रिशन के जुमरे में 9.76 JPA हासिल किया। बीएससी न्यूट्रिशन की ही फराह सलाम ने दूसरा रैंक हासिल किया। SCS की तालिबा सोफिया समरीन ने 3rd रैंक हासिल किया। कन्वोकेशन में शिरकत करते हुए प्रोफेसर कासिम, प्रोफेसर श्रीलता, माहिर तालीम कमालुद्दीन हामिद सलमानी, डॉक्टर आबिद अली मिर्जा, फजलुर रहमान कुर्रम प्रिंसिपल डॉन एजुकेशन और प्रोफेसर हाजी सज्जाद ने रॉयल डिग्री कॉलेज के इंतजामिया की सताइश की है, जिन्होंने इस कॉलेज के मियार को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रॉयल डिग्री कॉलेज ने कम अरसे में मियारी तालीम में एक मिसाल कायम की। कॉलेज से फारिग तालिबात आज मुल्क और बैरून मुल्क की आला यूनिवर्सिटीज से तालीम हासिल कर रही हैं और अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बना रही हैं। कॉलेज प्रिंसिपल और इंतजामिया के अरकान और फैकल्टी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। शऊर बेदारी की कमी की वजह से साइबर जराइम में इजाफा। इंटरनेट के दौर में बहुत बड़ा चैलेंज। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेफ्टी का KTR ने किया इफ्तिताह। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना तहरीक का मरकज जहदकारों की यादगार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आंध्रा वालों को दिया गया। रेवंत रेड्डी का बयान। जिंदा रहने के लिए एक तड़पता दिल भी चाहिए। हिंदुत्व पर कौन ज्यादा चलेगा, इसके लिए केजरीवाल, मोदी और कांग्रेस में मुकाबला। गुजरात में कामयाबी की उम्मीद। बैरिस्टर रवीसी की मीडिया से बातचीत। बैरूनी तुलबा पर मुबैना जिनसी हमला करने वाला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का हिंदी प्रोफेसर मुअत्तल। गिरफ्तारी का तुलबा ने किया मुतालबा। और मुश्तरका सर्वे के बाद भी वक्फ अराजी का अदम तहफ़्फ़ुज़। रियासती वक्फ बोर्ड की नाअहली के सबब तादला गड्ढा की वसी मौक़ूफ़ा अराजी पर कब्जा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।